Okay, so there are certain limitations in which Doppler effect cannot be taken place. If velocity of source is greater than speed of sound, in that case we cannot obtain the Doppler effect. If velocity of observer become greater than that of the speed of sound, so we cannot obtain it. So limitations की मतलब ये हुई कि velocity of source that must be less than velocity of speed of sound and velocity of observer that must be less than speed of sound. Okay, ये दो limitations है. Okay students, welcome in the new class. So students, today I am here to discuss with you about the Doppler effect. The Doppler effect क्या है? Actually, this phenomena, this mechanism was first investigated by the physicist named as a Doppler. So after that, that was named as a Doppler effect. Actually, in this phenomena, in this mechanism, Doppler observed that due to the relative motion of source and observer, due to the relative motion of source and listener or observer, he observed that there is change in pitch of sound, there is change in frequency of sound, there is change in wavelength of sound. वो साउंड की वेवलेंथ में चेंज आ रही थी, साउंड की पिच में चेंज आ रही थी. तो ये सारा फिनोमेना, ये सारा मैकेनिज्म डॉपलर ने ऑब्जर्व किया सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन की वजह से. सो आफ्टर दैट नेम्ड वाज अ डॉपलर इफेक्ट. उसको कहा गया कि दिस इज अ डॉपलर इफेक्ट. ओके, तो एक्चुअली देयर आर सर्टेन कंडीशंस, certain limitations on the basis of which Doppler observed all these changes, change of frequency, change of pitch, change of wavelength, all these phenomena, all these changes were observed on the basis of certain limitations, on the basis of certain conditions. Okay, so first we study what are the conditions, what are the situations on the basis of which we can observe the Doppler effect. So keep in mind, here are two observer. It means one is source and other one is observer. Both are two. One is observer and other one is source. जिधर से साउंड वेव्स निकल रही हैं और दूसरा जो उनको कैच कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, लिसनर. ओके, तो एक्चुअली फॉर फाइंडिंग ऑल दिस चेंजिंग we must keep in mind two conditions. One condition is that speed of observer must be less than speed of sound waves and speed of source also must be less than speed of sound. Okay, जो ऑब्जर्वर की रफ्तार है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम होनी चाहिए. जो साउंड वेव्स निकल रही है उनकी जो रफ्तार है वो ज्यादा होनी चाहिए सोर्स से, और जो ऑब्जर्वर है, जो लिसन कर रहा है, उससे भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो ये दो कंडीशंस आपको ज़हन में होनी चाहिए जिसके बेस पर हम डॉपलर इफेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. एक कंडीशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर must be less than that of velocity of speed of sound या speed of sound, and speed of source also must be less than speed of sound. ये दो कंडीशंस हैं, इनकी बेस पर हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बढ़ जाए स्पीड ऑफ साउंड से या वेलोसिटी ऑफ सोर्स बढ़ जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो इन दीज केसेस वी कैन नॉट ऑब्टेन द डॉपलर इफेक्ट. इन केसेस में हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज इन वेवलेंथ है, चेंज इन पिच है, दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली हियर्ड और ऑब्जर्व्ड. ओके, सो फॉर दीज कंडीशंस वी कैन ऑब्टेन द डॉपलर इफेक्ट. So now we discuss some cases. Case number first is that, and there is a relative motion between source and observer. First case is that observer is moving towards source. Observer is moving and source is stationary. जो साउंड वेव्स का सोर्स है वो क्या है, स्टेशनरी. जिस तरह मैं यहाँ पे रेस्ट में खड़ा हूँ, मेरा ये साउंड वेव्स का एक मैं सोर्स हूँ, मैं रेस्ट में. ओके, जो वेव्स निकल रही हैं वो मूव कर रही हैं, और जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, वो क्या है, मोशन में, वो मूविंग है. तो फर्स्ट केस इज दैट ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी. केस नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं. केस नंबर फर्स्ट इज दैट ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी. जो सोर्स है वो क्या है हमारे पास, स्टेशनरी है. अब देखते हैं कि इनके मोशन की वजह से कौन सी चेंजेस आती हैं फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में, कौन सी चेंजेस को हम ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं.
तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये लेट्स सपोज दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स and this is observer, this is observer. Now observer is moving and source is stationary. It means जो velocity है source की वो क्या है 0 मीटर per second. Now this is moving, observer is moving. Velocity of observer is not equal to 0 meter per second. Now there are two possibilities. One possibility is that this observer can move towards source and this observer also can move away from the source. दो कंडीशन है। ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भी आ सकता है और सोर्स से दूर भी जा सकता है, दो कंडीशन से। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, जब ये टुवर्ड सोर्स आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगी, उसकी स्पीड में क्या चेंज होगी, हम ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड केस में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से दूर चला जाए तो फिर क्या होगी, कौन सी चेंजेस आएंगी। ओके, तो फर्स्ट केस इज दैट व्हेन ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स सोर्स, सोर्स की तरफ जा रहा है ऑब्जर्वर। ओके, देखते हैं ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, दिस इज सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर। यहां पर क्या है, एक ऑब्जर्वर है और यहां पर ये एक सोर्स है। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0 मीटर पर सेकंड because source is stationary. Initially the velocity of observer is also 0 meter per second. This is also source of velocity of sound. ये साउंड की सोर्स है। नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दैट इज एक्चुअली 340 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर कहा जाए आपसे इधर a separation between source and observer is 350 meter and speed of sound is 340 meter per second. The speed of sound is 340 meter per second and separation between source and observer is 350 meter. After what time it will listen this sound? कितने टाइम के बाद ये साउंड सुनेगा, ये वेव्स रिसीव करेगा। So surely we know S is equal to V into T. If we are interested in the value of t, so t will become equal to s upon v, s upon v. So s is 350 and v is 340. जब 350 को डिवाइड करेंगे 340 के साथ तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. सो 1 सेकंड के बाद ये इन वेव्स को रिसीव करेगा, इन वेव्स को सुनेगा। ओके, नाउ हम क्या कहते हैं कि दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स के पास। दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। नाउ स्पीड ऑफ दिस ऑब्जर्वर इज एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड। इसकी जो रफ्तार है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। नाउ जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। कैसे, सपोज कर लेते हैं कि ये मैं साउंड वेव्स यहां से निकाल रहा हूं, मैं एक सोर्स हूं, मैं स्टेशनरी, मैं सोर्स हूं, मेरी जो स्पीड है वो क्या 0 मीटर पर सेकंड है, मैं स्टेशनरी हूं। अगर कोई ऑब्जर्वर मेरी तरफ आता रहेगा कंटिन्यूसली तो जितना वो मेरे क्लोज आएगा सोर्स की तरफ, जितना वो क्लोज आएगा, जो वो सुनेगा वेव्स, उनकी जो रफ्तार होगी, जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। जितना मेरे से दूर चला जाएगा वो मेरी साउंड वेव्स को कम रिसीव करेगा, जितना मेरे क्लोज आएगा सेपरेशन कम होती जाएगी। सेपरेशन कम होने से क्या होगा, क्या उसकी जो रिलेटिव स्पीड है दैट विल बी इंक्रीज्ड, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले जो एक्चुअल स्पीड निकल रही है 340 मीटर पर सेकंड साउंड वेव्स की, और वो रफ्तार जिस रफ्तार से वो मेरे क्लोज आ रहा है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी इस केस में v डैश, जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी v प्लस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगी। ओके,
ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये आपको पता है कि ये क्या है 340 मीटर पर सेकंड है, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा वो क्या होगा 350 मीटर पर सेकंड होगा। So now it is clear that this relative speed is maximum than that of 340 meter per second, and this relative speed is also maximum than that of 10 meter per second. So due to this relative motion, speed of the relative speed will be increased. Okay. अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगी। f dash is equal to v dash over lambda. So we know the value of v dash is equal to v plus में v naught upon में lambda. So we have also knowledge of this point. F is equal to v over lambda and lambda is equal to v over f. तो यहां पर हम प्लेस कर सकते हैं v over f. सो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं v plus v naught upon v into f यहां डिवाइड करा, ऊपर क्या करेगा ये मल्टीप्लाई। सो दिस इज अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो हियर्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो f डैश है। दिस इज नेम्ड एज हियर्ड फ्रीक्वेंसी and this is f is actually actual frequency, and this value between parentheses is actually a factor due to the relative motion of source and observer. इनके relative motion की वजह से जो factor include हो रहा है, add हो रहा है, वो actually ये factor, ये एक factor है because of relative motion. Okay. So now it is clear that this factor of relative motion, and factor of relative motion, the value of numerator is increasing. जो न्यूमिनेटर का वैल्यू है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है v प्लस वी नॉट, v प्लस में वी नॉट। अब देखें इनको, मैंने आपको बताया कि जो v है, v की वैल्यू क्या है वो 340 मीटर पर सेकंड है। जो नॉर्मल स्पीड है इसकी, स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पर, वो क्या है 340 मीटर पर सेकंड। और जो v है, v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, वो क्या है 10 मीटर पर सेकंड। 340 प्लस में 10 यू विल गेट 350 डिवाइड बाय 340, 350 divided by 340 you will get more than 1 point something you will get value of this point. So it means in this conditions value of this factor is greater than 1 से क्या है ज्यादा है, 1 से क्या है इस केस में ज्यादा। अब ये देखें कॉमन सेंस की बात है कि जितना ऑब्जेक्ट के पास, अगर मैं सोर्स हूं, मेरे पास जितना ऑब्जर्वर तेजी से आएगा, मेरे वर्ड आएगा टुवर्ड्स मेरे तरफ आएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो आवाज सुनेगा दैट विल बी सम स्लाइटली शेरिल, वो क्या होगा शेरिल होगा, वो पतला सा आवाज सुनेगा। और जितना मेरे से दूर चला जाएगा वो उतना मेरा जो आवाज होगा उसके लिए दैट विल बी ग्रेव, वो क्या होगा ग्रेव होगा। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने कभी रोड पर ये चीज देखी होगी कि जब कोई सोर्स ऑफ साउंड, कोई बस वगैरह, कोई बाइक वगैरह या कोई ऐसी चीज बड़ी गाड़ी वो आपके क्लोज आ रही है, तो पहले उसकी साउंड इस तरह आएगी, जूम जूम इस तरह आएगा। जब मेरे को क्रॉस करेगी, जब आपको क्रॉस करेगी तो उसके बाद आपको इस तरह सुनाई देगा जूम। तो जब सोर्स से दूर जा रही है, जब सोर्स से दूर जा रही है तो लास्ट में जो आप आवाज सुनेंगे वो ग्रेव होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। जब पहले क्लोज आ रहे आपके पास तो इस तरह होगा जूम, इस तरह। जो पहले आ रही थी पहले श्रिल था, जब आपको क्रॉस कर लेगी फिर आवाज ग्रेव हो जाएगा। तो नाउ कंडीशन इज टुवर्ड्स। अब कंडीशन क्या है टुवर्ड्स है। जब टुवर्ड्स आ रही तो उस केस में जो साउंड होगा दैट विल बी शेरिल, वो क्या होगा शेरिल। और जब आप इधर ये वैल्यू प्लेस करते हैं v की 340 और 10 की और 340, तो आपको इस केस में जो इस फैक्टर का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस केस में जो f डैश है दैट विल बी
more than that of f, एफ डे जो हियर फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी किससे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो इस केस में जो आप आवाज सुनेंगे दैट विल बी शेरल, वो आवाज कौन सा होगा, शेरल होगा। अच्छा, अगर कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हियर फ्रीक्वेंसी है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अगर हम कंडीशन लेते हैं इस तरह कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो है 0 मीटर पर सेकंड, आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 v बाय v से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई f यू विल गेट f। सो इस केस में f डैश विल बिकम इक्वल टू f। तो जो हियर फ्रीक्वेंसी है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है इस केस में दोनों क्या है, वो दोनों बराबर है। ओके, तो सिंपली हम इस चीज को इस तरह भी कह सकते हैं, जब न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये न्यूमरेटर है इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, जब न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस केस में जो हमें सुनने वाला आवाज है दैट इज एक्चुअली श्रिल, बिकॉज f डैश इज इंक्रीजिंग देन दैट ऑफ f, f से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ये 1 के बराबर है वैल्यू इस ब्रैकेट का, एग्जैक्ट 1 के बराबर है, तो उस केस में क्या है, f इज इक्वल टू f डैश। अगर ये वैल्यू ब्रैकेट का एग्जैक्ट 1 के बराबर, तो उस केस में ये कंडीशंस। ओके, तो ये है इसकी हियर फ्रीक्वेंसी और ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, आप इसको पिच भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करें, इस f को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस f को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो f डैश इज इक्वल टू v बाय v इंटू f प्लस में v नॉट बाय v इंटू f। so v by v से ये कैंसिल हो जाएगा, so you will get f प्लस में v नॉट बाय v इंटू f, ये कैंसिल हो जाएंगे। so f डैश माइनस f इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल v नॉट बाय v इंटू f, दैट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, this is here frequency and this is actual frequency। if we can say as this is a difference of frequency and this is change of frequency, here frequency minus actual frequency। so हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा f इज इक्वल टू v नॉट बाय v इंटू f। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा f ओवर f इज इक्वल टू v नॉट ओवर v। ओके, तो दैट इज एक्चुअली called fractional change in frequency, difference of frequency upon में original frequency is equal to ratio of velocity of observer to velocity of sound। okay, तो जो fractional change of frequency है that depends upon the two factors, fractional change in frequency depends upon the two factors, one is velocity of observer and velocity of sound। if velocity of observer is increasing while speed of sound is constant, so then fractional change in frequency will be increased। अगर हम इसको continuously increase करें velocity of observer को, और जो हमारे पास speed of sound है वो क्या है, constant रखें, तो उस केस में जो fractional change in frequency है वो increase हो जाएगी। अगर हम इस तरह कहते हैं कि speed of sound को increase करते जाते हैं और जो velocity of observer है वो constant रखते हैं, तो उस केस में जो इस रेशो होगा, इस फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी डिक्रीज, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्या है, इसका एक अपोजिट केस रहते हैं। इस केस में क्या था कि जो ऑब्जर्वर है इसके क्लोज आ रहा है। अब क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वर इससे अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, जो स्टेशनरी सोर्स है जिसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है उससे ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो उस केस में होगा क्या, जब ये दूर जाएगा तो ये जो वेव्स हैं, ये जो साउंड है ये कम सुनेगा। जितना इसके क्लोज आ रहा था इसकी, इस लिसनर की, इस ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीज हो रही थी,
उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी या जो उसकी रिलेटिव स्पीड थी दैट वाज इंक्रीजिंग, उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी। अब केस कुछ इसका अपोजिट है टोटली। अब क्या हो रहा है कि ये साउंड वेव्स कांस्टेंट स्पीड के साथ निकल रही हैं, सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है इससे दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है। पहले क्या था, कोई बंदा था इस स्टेशनरी सोर्स के क्लोज आ रहा था, ओके, तो उसने ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुना, उसने ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी जो रिलेटिव स्पीड थी वो एक्चुअली इंक्रीज हो रही थी। अब क्या है, मैं स्टेशनरी, मैं पहले भी स्टेशनरी था, अभी भी स्टेशनरी हूं, मगर जो सोर्स है वो मेरे से अवे जा रहा है, वो मेरे से दूर जा रहा है। तो जब वो मेरे से दूर जाएगा तो उसके पास जो लिसनिंग या जो ऑब्जर्वर है, जो उसके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डिक्रीज्ड, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही सोर्स हमारे पास क्लोज आता है, हम पहले खड़े रहते हैं स्टेशनरी, बाईपास पर हम खड़े हैं, जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी हमारे क्लोज आएगी तो हमारे पास जो सुनने वाली आवाज होगी वो क्या होगी, वो शरीर होगी, वो ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। जब मेरे से दूर क्रॉस कर लेगी, मेरे से अभी जाएगी, तो हम थोड़ी सी पतली सी आवाज नहीं बल्कि थोड़ी सी मोटी सी आवाज सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम केस है, ऑब्जर्वर इस सोर्स से अवे जा रहा है, तो उस केस में होगा क्या, तो उसकी जो एक्चुअल स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखेंगे v माइनस में v नॉट, स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी जब ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है। तो दूसरा केस क्या होगा इसका, अवे फ्रॉम सोर्स, इस सेकंड केस विल बी अवे फ्रॉम सोर्स है जार, ये सोर्स है हमारे पास, जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स थी दैट वाज एक्चुअली 0 मीटर पर सेकंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड थी रूम टेम्परेचर पर दैट इज 340 मीटर पर सेकंड, ओके। और जो हमारे पास ऑब्जर्वर था, अब क्या है इस केस में, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, वो सोर्स से अवे जा रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारा सेम फिनोमेना आप कैरी ऑन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट मिलेगी हमारे पास दैट विल बिकम इक्वल टू v माइनस में vo अपॉन v इंटू f, दिस विल बी ईयर फ्रीक्वेंसी, इसकी ईयर फ्रीक्वेंसी ये बनेगी, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास साउंड मिलेगा दैट विल बी ग्रेव, वो क्या होगा, ग्रेव होगा। इसमें जो इस फैक्टर की वैल्यू है, इस पैरेंथेसिस के दरमियान में जो फैक्टर है जो रिलेटिव मोशन की वजह से पैदा हुआ है, इसकी वैल्यू अब लेस देन 1 आएगी। क्यों, हमने जो स्पीड ऑफ साउंड ली थी रूम टेम्परेचर पर वो थी 340 मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमने ली थी वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो 340 माइनस में 10, you will get 330 मीटर पर सेकंड। 330 डिवाइडेड बाय 340 you will get लेस देन 1। जो इस केस में वैल्यू आएगा आपके पास इस पैरेंथेसिस का, वो क्या होगा, 1 से क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन, इसकी वैल्यू विल बी लेस देन 1। जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो हम कहेंगे f डैश इज लेस देन f। जब f डैश लेस देन हो f से, ईयर फ्रीक्वेंसी लेस देन हो f से, तो इस केस में जो हमारे पास साउंड होगा दैट विल बी ग्रेव। कौन सा साउंड होगा वो, दैट विल बी ग्रेव, वो साउंड होगा हमारे पास ग्रेव होगा। अब सेम इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस को इस तरह से ही ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस हमारे पास। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी कुछ इस तरह सा है। इस केस में क्या था कि ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स इज स्टेशनरी। नाउ वी आर टेकिंग लाइक दैट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग। सोर्स मूव कर रहा है, जैसे साउंड निकल रही है वो मूव कर रहा है, बट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर रेस्ट में। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
Now we are taking observer is stationary and source is moving. Now there are two conditions. Source can move towards observer and source can move away from the observer. Then what will be its Doppler effect? What will be its change in frequency, pitch or wavelength that we have here to observe. Okay. Now conditions that हमारे पास केस ये है, observer is stationary and source is moving. जो सोर्स है वो क्या है, वो मूविंग एंड सोर्स इज मूविंग. इस कंडीशन को देखते हैं. ओके, नाउ वी आर टेकिंग सोर्स इज मूविंग. फर्स्ट केस ये है जब ये सोर्स टुवर्ड्स मूव करे ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर है. इस केस में जो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है वो 0 मीटर पर सेकंड है और जो स्पीड ऑफ सोर्स है लेट्स सपोज दैट इज 10 मीटर पर सेकंड और जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 340 मीटर पर सेकंड. इस केस में ये तो यहाँ पर जो मोशन है दैट इज एक्चुअली मोशन ऑफ सोर्स का मोशन है. तो जब ये सोर्स मूव करेगा तो इसकी वेवलेंथ कंप्रेस होगी. अगर सोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता जाएगा, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके क्लोज चला जाऊं तो इस केस में होगा क्या, जब सोर्स मूव करे तो वेव कंप्रेस होगी. जब वेव कंप्रेस होगी तो वेवलेंथ में चेंज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी. ओके, किस तरह हम इसको इस तरह लेते हैं, ऑब्जर्व की होगी जैसे कोई ढोलक वाला होता है. ठीक है, ये कोई ढोलक है. जब यहां से इसके पर्दे पर, इसके लेयर पर जब ये फोर्स वगैरह लगाता है तो होता क्या है, इसका जो इनर पार्ट है दैट इज एक्चुअली कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो जाता है. इसकी फोर्स लगाने से दैट पार्ट विल बी कंप्रेस्ड इनसाइड दिस. ये इस साइड में कंप्रेस हो जाता है. तो यहाँ पर इसकी साइड पर एक रीजन बनेगा, यहाँ पर एक रेयर फ्रैक्शन बनेगी. तो हम कहते हैं दिस इज अ रेयर फ्रैक्टेड रीजन. दिस इज रेयर फ्रैक्टेड रीजन. ये इसका रेयर फ्रैक्टेड रीजन. नाउ हम सिग्नल को कुछ इस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस तरह चेंज करते हैं. हम कहते हैं कि ये जो ढोलक है इस केस में स्टेशनरी थी. अब होता क्या है, जैसे ये फोर्स लगाया था पहले इस तरह थी, इसने फोर्स लगाया, ये फिक्स्ड थी. अब वो फोर्स लगा तो वो थोड़ा सा इसको भी मूव कराता है, इसको भी थोड़ा सा आगे मूव कराता है. तो उस केस में होगा क्या, उसका जो रेयर फ्रैक्ट रीजन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. पहले तो ये फोर्स लगा रहा था, अब क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है और इसको भी थोड़ा सा आगे कर रहा है. इसका मतलब ये है कि इस सोर्स को ये कंप्रेस कर रहा है, इसकी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है. तो पहले वो सिंपल कंडीशन है. ये ढोलक है, वन टाइम में रिकॉल करा लेता हूँ. ये ढोलक है, जैसे इसने इसको फोर्स लगाया कि ये इनर साइड से कंप्रेस हो गया और आउटर साइड से ये रेयर फ्रैक्टेड हो गया. तो हम कहते हैं दिस रेयर फ्रैक्टेड रीजन. कंडीशन ये थी कि ये जो ढोलक है ये पहले स्टेशनरी है, बस इधर से फोर्स लगा रहा है ये कंटिन्यूसली. अब कंडीशन क्या है, ये फोर्स भी लगा रहा है और इस ढोलक को थोड़ा सा आगे भी करता जा रहा है. जब ये ढोलक को आगे करेगा, इस ढोल को, इस ड्रम को आगे करेगा, इसको आगे करने से होगा क्या, इसकी वेवलेंथ कंप्रेस होगी, इसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी. किस तरह, ये इस तरह आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. सपोज कर लेते हैं कि इसने इसको इतना थोड़ा तक आगे कर लिया है और ये क्या है, इसका रेयर फ्रैक्टेड रीजन. तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं हो मगर डिफरेंस है. ठीक है, चाहे ज्यादा डिफरेंस ना हो बट थोड़ा सा भी डिफरेंस इसके वेवलेंथ में. ये कंप्रेस्ड है, इसमें ढोलक ने आगे मूव किया है. या हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ थी पहले वो ये थी, ये वेवलेंथ थी. जब इसने इसको कंप्रेस किया तो इसकी जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई हमें वो ये हुई. दैट इज दिस. ओके, ये इसकी लैम्डा है और ये इतनी, और यहाँ से क्या आया इसकी वेवलेंथ में
ये चेंज आई है डेल्टा लैम्डा, ये वेवलेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई है, और ये जो है लैम्डा डैश है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ में चेंज आई है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो और सोर्स मूविंग हो, उस केस में इसकी वेवलेंथ चेंज होगी। जो v है उस v पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो v चेंज होती है दैट इज चेंज बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वर मोशन। जब ऑब्जर्वर मोशन में होगा उस केस में स्पीड चेंज हो सकती है, अदरवाइज स्पीड विल नॉट चेंज। ओके, सो हेयर इट्स वेवलेंथ विल चेंज, यहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड चेंज नहीं हो रही बिकॉज ऑब्जर्वर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, देखते हैं इसकी वेवलेंथ को, इसकी वेवलेंथ को देखते हैं। तो इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज एक्चुअली लैम्डा डैश प्लस में डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, जो चेंज इन वेवलेंथ आई है, इसको कंप्रेस जो हमने आगे किया, ठीक है। अगर हम मालूम करना चाहें इस लैम्डा डैश को, तो लैम्डा डैश इज इक्वल लैम्डा माइनस में डेल्टा लैम्डा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एफ माइनस में वी एस अपॉन में एफ, क्योंकि जो वेवलेंथ चेंज है हुए दिस इज चेंज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी की वजह से इसकी वेवलेंथ में चेंज आई है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं v डैश इज इक्वल टू v माइनस में वी एस अपॉन में एफ। और हमने ये चीज भी पढ़ी है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है v अपॉन में लैम्डा डैश। पहले केस में लिख रहे थे v डैश, अब यहाँ लिखेंगे v अपॉन में लैम्डा डैश, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रहा है दिस बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस में वी एस अपॉन में एफ। ये एफ को हम इस तरह लिख सकते हैं v अपॉन v माइनस में वी एस इंटू एफ। तो ये है हमारे पास कंडीशन, ठीक है, दिस इज कंडीशन। तो अब देखें इस केस में क्या है, एक्चुअली जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो रहा है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो माइनस में, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी उस केस में एफ डैश की वैल्यू यहाँ पर उतनी इंक्रीज होगी। क्यों, देखें अब हम क्या कहते हैं कि हमने जो वी ली थी रूम टेम्परेचर वो 340 थी, और जो वी एस हमने ली दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। हम लिखते हैं कि 340 अपॉन 340 माइनस में 10, तो 340 बाय 330 यू विल गेट मोर देन 1। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो इस फैक्टर का वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। जब 1 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में हम जो साउंड ऑब्टेन करते हैं दैट इज एक्चुअली शेरल। मैंने आपको बताया कि जब ये लिखा हुआ ना, अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर इस ब्रैकेट के वैल्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो हमारे पास साउंड होगा वो क्या होगा, वो शेरल होगा। ओके, इस केस में क्या होगी, एफ डैश ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ, और जो साउंड होगी दैट विल बी शेरल होगी। इसके अपोजिट में भी इस तरह का केस आ सकता है कि अगर ये इससे अवे जाए, इससे क्या जाए, अवे जाए, तो उस केस में हम क्या लेंगे, इस केस में हम इसके एंटी केस लेंगे, दैट विल बिकम इक्वल एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस एस, वी प्लस एफ इंटू एफ। इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में इस पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू है इस फैक्टर का वैल्यू, इस फैक्टर का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। जब इससे वैल्यू 1 से कम हो जाएगा तो उस केस में जो एफ डैश है दैट विल बी लेस देन एफ, एफ डैश एफ से कम हो जाएगी। तो उस केस में जो हमारे पास साउंड होगा वो कौन सा होगा, वो ग्रेव होगा, क्योंकि हमारे पास जो v है एट रूम टेम्परेचर दैट इज 340 मीटर पर सेकंड अपॉन 340 प्लस 10, तो 340 डिवाइडेड बाय 350 यू विल गेट लेस देन 1। इस केस में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जो हमारे पास साउंड होगा वो कौन सा होगा, ग्रेव होगा। ओके, तो ये दो केसेस भी क्लियर हो गए। अब लास्ट वन केस हमारे पास ये है, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाए। और इसका दूसरा पार्ट ये, इफ बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं। ओके, तो अब ये डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लें। इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, केस नंबर 3, source and observer
बोथ आर मूविंग। ओके, जब दोनों मूव कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि सोर्स और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। इसका पार्ट है टुवर्ड्स ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाए, मतलब अगर ये ऑब्जर्वर है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास सोर्स, दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाए, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर नॉट इक्वल 0 मीटर पर सेकंड, और इस केस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स दैट इज एक्चुअली नॉट इक्वल 0 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। तो इस केस में जो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी होगी इसकी वो ये होगी एफ डैश वी प्लस में वी नॉट अपॉन वी माइनस में वी एस इंटू एफ। ओके, ये जो है v प्लस वी नॉट हमने लिया था केस जब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, ये हमने पढ़ा था ना v प्लस वी नॉट, ये तब का केस है जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ये केस पढ़ा था। तो इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के करीब जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास जो साउंड सुनाई देगा दैट विल बी शिरल, वो कौन सा साउंड होगा, वो शिरल होगा। अगर हम कहें टुवर्ड्स के बजाय अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे क्या जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस केस में जो हमारे पास अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी होगी, जो हियर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वो कुछ इस तरह हो जाएगी v माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस में वी एस इंटू एफ। जो साइंस है वो क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इस केस में होगा क्या, एफ डैश विल बी लेस देन एफ। जो साउंड होगा हमारे पास वो साउंड कौन सा होगा, वो साउंड ग्रेव होगा। ओके, तो दैट वाज द बेसिक डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन ऑब्टेन दी ऑल दीस फिनोमेना, ऑल दीस मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट था। अब हम इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं कि किस केस में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा। कंडीशंस व्हेन डॉपलर इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स दोनों की 0 मीटर पर सेकंड है, दोनों की 0 मीटर पर सेकंड है, दोनों स्टेशनरी है, तो इस केस में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी सिचुएशन है जिस केस में हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। केस नंबर फर्स्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इन दैट केस वी कैन नॉट ऑब्टेन द फिनोमेना और मैकेनिज्म ऑफ डॉपलर इफेक्ट, उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 12 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज आल्सो 12 मीटर पर सेकंड, दोनों की वेलोसिटी क्या है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, तो इस केस में हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा केस, तीसरा केस ये है हमारे पास, इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ साउंड आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम कहें कि ये ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है और जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है ये इस तरफ जा रहा है, तो इस केस में भी हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर मूव करें, तो इस केस में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा। ओके, तो ये कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर हम डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते। और लिमिटेशंस में भी मैंने ये बताया, अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा है तो उस केस में हम इसको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये लाजमी है कि वेलोसिटी ऑफ source of sound must be less than that of velocity of sound, and velocity of observer also must be less than velocity of speed of sound, या speed of sound नॉर्मल लिख दें, तो इस केस में आप डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन से दो। ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट द डॉपलर इफेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture, you are free to ask. Okay, we'll see you next. Thank you.